Good evening, friends. Good evening, ma'am. So today topic is Directive Principles of State Policy and Education. This topic comes under Education Contemporary in Society paper, that is philosophy paper 1 and unit 2. So our chief guest, Dr. Farzana Shahla, is taken already one session on Constitution and Education, Constitutional Vision of Independent India. So what are the articles related to education? She explains well mannerly, and we understood also clearly without any doubt. Now today also she's going to take the topic is Directive Principles of State Policy and Education. Thank you, madam. So welcome to the session. Over to session, madam. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Please. Good evening. Assalamu alaikum, all of you. Walaikum salam, ma'am. I don't know कितने लोग पिछले क्लास में थे. Am I audible? Yes, ma'am. आवाज सही है ना? Yeah, सही. Okay. बिल्कुल. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की थी और इस क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. One minute, sir. Friends, first of all, listen carefully with the slides and go through the slides. Whatever the doubts, you can write on your notebook. Afterwards, we will discuss later at the end of the session. You people can learn so many things from ma'am. Really. Yes, one minute, sir. There some issue. Okay, the sharing, sir. 1 minute. Yeah. Now you can. You can learn so many things from ma'am. Actually, madam serving to all the people, especially for women empowerment के लिए. उसके पहले मैं बोल दिया, spoken English nowadays all girls are very behind, lagging about communication skills. So madam is trying to explore weekly twice, that is Saturday and Monday, 2 दिन बच्चों के लिए एक सेशन कंडक्ट करके तो बच्चों से मुलाकात होके स्मॉल छोटा शब्दों से वर्ड से सेंटेंसेस कैसे बात करना, कैसे तरीके से बात करना, कितने डेली इतना वर्ड सीखना, वो वर्ड सीखने के बाद कैसे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन. तो ऐसा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे. तो आप तमाम लोग फॉलो करो मैडम को. whenever the chance is there, मैडम will come with us इंशाल्लाह. मैडम एक बात बोलता हूँ मैडम के बारे में, दे ट्रेनिस रियली में नम्मा यकीन करो ना करो, कल मैडम कॉल मुझे करके सर क्लास कब लेंगे सर पूछे. रियली माशाल्लाह उनको बहुत आदत देना चाहिए भगवान में. So generally we'll ask the great people, but thing is she asked me, sir, when you are going to take a class, sir. इतना लोगों के रहते जाए सर. Really I am appreciating you, madam. నిజంగా మీకు భగవంతుడు అల్లా మంచి ఆయుర్వేదాలతోటి ఈ కుటుంబాన్ని మంచిగా చూడాలి మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మ. రైట్. Sir, I'm ready now. There was some technical issue. Yeah. Your chota, please call your son. Yeah. Directive Principles of State Policy. Good. अच्छा slides बना रहे जी day by day. Nice. So the next class, पिछली क्लास में we discussed about constitution and educational vision of the constitution. तो थोड़ा बहुत मैं आपको because हो सकता है कुछ लोग नए हो इस क्लास में, थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ये हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है दुनिया में,
सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड जब शुरू हुआ था, बना था ये, तो उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी प्रेजेंटली क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, चेंजेस आते गए, तो इसमें 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 104 बार उसमें चेंजेस लाया जा चुका है। कब तक? जनवरी 25, 2020 तक। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1950 में हुआ था, उसी साल, जिस साल ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी साल। नो, आप लोगों से क्वेश्चन, पिछली क्लास में कुछ याद है आप लोगों को? पिछली क्लास में क्या हुआ था हमारे पास? या एक या दो आंसर मुझे चाहिए। one or two people please, you can. डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़े थे ना सर? या और कुछ? इसके बिना और कुछ? बेसिकली हमने ये देखा था कि किस किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के एजुकेशनल प्रोविजंस हैं। और मैम एमएच पार्ट्समैन के बारे में भी पढ़े थे। जी, और जिस आर्टिकल में जो था वो हाँ मैम जी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी ये है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये 25 पार्ट्स में पूरे अपने 448 जो है आर्टिकल्स वो डिवाइड किए हुए हैं। तो ये इनिशियली जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 22 थे पार्ट्स और बाद में 3 पार्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से एक पार्ट जो है पार्ट 4, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये डायरेक्टिव्स क्या हैं? डायरेक्टिव्स ये हैं कि आप जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक डायरेक्शन में करते हैं, कुछ सोच के करते हैं, राइट? एम आई करेक्ट? जी मैम। सोच के करते हैं, ऐसी तो बस खड़े हो गए और कुछ करने लगे तो नहीं हो पाएगा काम। जैसे आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो यू प्लान, आप प्लान करते, राइट? जी मैम। जी, अगर हाँ जी, आपको एग्जाम लिखना है तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो वैसे ही जब इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, इतना वास्ट उसका एरिया है, आपको पता है इतने सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट? तो इसको पूरा चलाने के लिए बहुत सारी टाइम टू टाइम पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे लॉज बनाने पड़ते हैं, है ना? am I correct? यस मैम। तो कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने पहले ही सोच लिया था कि ये पूरा इंडिया को चलाने के लिए, इसके एक एक स्टेट को चलाने के लिए किसी ना किसी एक्ट की, लॉ की, किसी ना किसी ये कानून की जरूरत पड़ेगी, सही है ना, इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए। तो ये ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये वही बताते हैं। इसमें ये बताते हैं कि इकोनॉमिकली, यानी जो सोसाइटी में हर जो हम सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, सबको बराबरी का हक जो मिला हुआ है, उनको किस तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जाए। इसका मतलब उनके फाइनेंस को लेके, जो उनके पास पैसों की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है, उसमें क्या होना चाहिए। फिर ये है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जो वीकर सेक्शन है, जिनको नहीं होता है, जिनके पास मौके नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा ये है कि हम इंडिया सिर्फ एक अकेला कंट्री नहीं है, एक अकेला मुल्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे और दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमें दोस्ताना ताल्लुक रखना है। वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ पीस मेंटेन करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, सही है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही लोगों को पसंद आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को, और उन्होंने ये वाला पॉइंट जो था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से बोरो कर लिया, ठीक है। तो द प्रिंसिपल्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड।
एंड ऑल्सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ गांधीइज्म। महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं, उनके जी काम मैम। भी आप लोगों को पता है। तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमको, और वो सारे प्रिंसिपल जो उनके थे वो भी हम चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए, वो आम आम जो हमारी रोज की जो जिंदगी है उसमें शामिल हो जाए। तो दे रिलेट टू जस्टिस, सोशल जस्टिस। सबको सोसाइटी में जो है सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, हर चीज बराबर होनी चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देन इकोनॉमिक वेलफेयर, सबके पास जाहिर आमदनी हो, सबके साथ फाइनेंस हो, सबके पास खाने पीने जीने के लिए सही सहूलतें हो। फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों से अच्छी जो रिलेशन मेंटेन करना है। और लीगल तथा और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पे लीगल लॉ से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों का भी प्रोविजन होना चाहिए। यहाँ देखिए हमारे पास जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नाउ आई कॉल इट DPSP शॉर्ट फॉर्म। सो दिस इज यहाँ पे 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल हैं उसमें इसका जिक्र आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 36 के में और 37 में तो कोई ऐसा सिर्फ ये है कि इसको फॉलो किया जाए, लेकिन 38 से लेके 51 तक कहाँ कहाँ क्या क्या फॉलो करना है वो लिखा हुआ है। जैसे प्रोविजन डीलिंग विथ वेलफेयर, सबके फायदे के लिए, सबके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए। तो 38, 42, 45, 47 जो है ये वेलफेयर के बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 39, 41, 43, 46 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। देन प्रोविजंस प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, 40, 44, 45 में डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीजें हैं। और आर्टिकल 48, 49, 50 और 51 में मिसलेनियस चीजें हैं जो खास तौर पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके जो सराउंडिंग है, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, उनके बारे में है ये। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से ये स्लाइड उतना विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, बट बेसिकली जो DPSP है इट्स अ गाइडलाइंस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको बताता है, गाइडलाइंस देता है कि कैसे करना है। एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे स्कूल में बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, बताते हैं कैसे करना है। किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज जो रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टिव, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव, डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपको अगर आप घर में किसी छोटे को बता रहे कि काम करना है तो क्या बोलते हैं, भाई तुम जाके जो है रहनुमा मैम, गाइड। हाँ, गाइड गाइड कर रहे हैं आप, तो इट्स अ गाइडेंस। तो इसको गाइडलाइंस है, गाइड बुक है ये। देन इट एस्टैब्लिश अ वेल वर्स सोसाइटी इन द कंट्री। और इसका मकसद क्या रहता है, ये सारी चीजें अगर अपना ली जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे देश में, हमारे मुल्क में एक अच्छी खासी सोसाइटी स्टैब्लिश हो जाएगी। देन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये तो नई चीज है, लेकिन बात तो वही है कि हम सोशल और इकोनॉमिकली चाहते हैं कि सब लोग बराबर हो जाएं, सब लोगों को बराबर का दर्जा मिल जाए। देन इट्स नॉन जस्टिफिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल। अच्छा, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं हो रहे, कोई इसके अगेंस्ट जा रहा, तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स का क्या है मामला, अगर आपकी कोई राइट टू प्रॉपर्टी छीन ले रहा, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले रहा, तो क्या होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट, अदालत का हाँ खटखटा सकते हैं आप, अदालत का क्या बोलते हैं, डोर, दरवाजा। हम दरवाजा खटखटा सकते, पर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। एंड गांधीयन सोशलिस्ट एंड लिबरल प्रिंसिपल्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसमें आजादी, लिबरल क्या है, आपको आजादी दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हर आदमी को छूट है, लेकिन कभी भी कोई छूट भी जरूरत से ज्यादा नहीं दी जाती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी क्या करता है, एक लिमिट में छूट देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। नाउ आर्टिकल 6, ये पूरे आर्टिकल्स हैं, अगर लास्ट में जरूरत पड़ी तो हम लोग इस पे वापस आएंगे स्लाइड पे। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो these are the social principles, DPSP.
are certain guidelines provided in Part 4 of the Constitution to help the central, state and local governments to effectively govern the country. तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं सोशल प्रिंसिपल्स में? These are not enforceable in any court of law. आपको अभी अभी बता दिया मैंने. Then these are directives of the state to achieve political, social and economic development. ये भी हमारी बात हुई कि सब चीजों में डेवलपमेंट होना चाहिए. Then provide equal distribution of wealth. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबके पास बराबर से धन दौलत आ जाए, बट ना एक था उनका एक नजरिया कि भाई सबको बराबरी से वेल्थ मिलना चाहिए, दौलत मिलनी चाहिए. सो प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो वो तो खैर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर सेक्टर जो जैसी जॉब करता है, जो जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट में रहता है उस हिसाब से है, जो जिस जगह पे रह रहा है उस हिसाब से उसको उसके पास जो है जॉब रहेगी और उसी की आमदनी उसको होगी. वेजेस, डेली वेजेस रहते हैं, जॉब सैलरी वाले जॉब वाले रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं. They aim to provide equality to all, raise the standard of living for the people and work towards establishing peace and security. क्या है? आपको पहले तो equality for all, then standard of living, आपके रहन सहने का जो तरीका है वो ऊंचा करना चाह रहे हैं, and work towards establishing peace and security. तो एक आम इंसान क्या चाहता है कि पीसफुल हो हर चीज, आराम से जिंदगी गुजरे और थोड़ी सिक्योरिटी हो, किसी तरह का टेंशन न रहे. तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई. देन सोशल प्रिंसिपल में और एक चीज है प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एक तो रेज भी करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, आपकी जो रहने की जो रहन सहन जो उसको ऊपर बढ़ाना है, और डिसेंट भी एक अच्छे अंदाज में. ये नहीं कि आप कुछ भी चोरी कर लीजिए, डाका डाल लीजिए और आराम से जिंदगी जिए. एक डिसेंट लाइफ की उम्मीद की जा रही थी. देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू अर्न अ लाइवलीहुड, और एम्प्लॉयमेंट देना, नौकरी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी जिंदगी खुद ना अपने कमा के खुद से सुकून की जिंदगी जी सके. देन प्रोवाइड न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. तो न्यूट्रिशियस भी सिर्फ खाना नहीं खाना है बल्कि हेल्दी फूड लेना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, ठीक है, और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे भी सुकून हो, है ना. देन प्रोवाइड इक्वल वेजेस टू ऑल. औरतों के लिए बच्चे भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, तो सबके इसमें फर्क क्यों होना चाहिए? सबको इक्वल मिलना चाहिए जो भी रिटर्न मिल रहा है. तो दैट इज प्रोवाइड इक्वल वेजेस. देन प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. आपको तो पता ही है कि सोसाइटी में औरतों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है. तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये नहीं होना चाहिए, तो उसको भी रोकने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए. Then economic principles provide social security schemes for like pension scheme. तो जॉब कर लिया, जॉब करके रिटायर हो गए, अब क्या? अब जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, तो इंसान की जिंदगी फिर बदल जाती है. तो यहाँ पे क्या है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन या जो भी प्रोविडेंट फंड रहता है या कुछ उसके जो बाद में जो पैसे आते हैं. देन हेल्प वर्कर्स पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज चलती हैं उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी मौका मिले कि वो पार्टिसिपेट करें, वो अपना जो है अपने आइडियाज शेयर करें, अपने तौर पे काम करें, उनकी भी अहमियत रहे वहाँ पे. देन प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करने की सलाह मशवरे से काम होता है, ऐसे सोसाइटीज को प्रमोट करना चाह रहे थे. देन प्रोवाइड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन. Shall I interfere, ma'am? Here, one word. Shall I interfere? Yes, sir. Sure. आप जो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे ड्वाक्रा ग्रुप, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के वास्ते देयर इज वन ग्रुप, ड्वाक्रा ग्रुप. नाउ आवर गवर्नमेंट इज गिविंग सम अमाउंट ऑफ पीपल, दे आर interchanging the chits and some form of some their accumulated fund, and they are distributing some on the basis of their profit. That's one type. And some are the cooperative government cooperative banks are there. So that purpose is they give the loans to the farmers after getting the crop, and they will repay. So that is one type of cooperative. जैसा बहुत तरीका, for example for weaker sections there is a cooperative bank, for carpentry all these equipment के लिए cooperative bank है. ऐसा पूरा गवर्नमेंट इसके बारे में देख रहे जी.
और पेंशन के बारे में जो अलग है, वो पेंशन का क्या है, हर एक आदमी जो ईयर्स के वजह से और उनका काम कुछ नहीं है तो एम्प्लॉय नहीं है तो घर पे, तो वो लोगों को गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं, ये एज पे कुछ काम नहीं कर सकते नहीं, लोगों को थोड़ा मदद देना बोल के वो पेंशन स्कीम। थैंक यू मैम प्लीज। और इसके पहले मैडम एक बात बोले, बहुत अच्छा बात है वो। सो सपोज पैंडेमिक सिचुएशन इन जनरल, यूथ whenever youth not get the jobs, so government is trying to provide some benefits. That means 1,000 rupees per month or 1,500 per month, like that. In other countries, every for example, if you take Australia or England or USA, every child will get some sort of amount for each month. So how we can pay? After getting the job, they will collect all the amount. So that is the purpose there. For example, if you take Australia, up to PG तक पूरा पैसे गवर्नमेंट देते, लेकिन हम जो जॉब करने के वक्त, जब जॉब मिलने के बाद वो रिमेंट पैसे हम पे करना गवर्नमेंट को. And for unemployment, they will give really $500 per month for unemployed. Any number of there, for each and every person they are supposed to give the some amount. So they will survive के लिए, बाद में automatically they will job. So thank you ma'am, please for the continue. Thank you, sir. Yeah, please. So sir already spoke about cooperative society. उसके बाद आ रहा देखिए प्रोवाइड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे ये है कि छोटे बच्चों को सिर्फ ख्याल ही नहीं करना है, बल्कि उनके एजुकेशन पे भी ख्याल But ECC madam, yeah, that is early childhood care and education के बारे में पीछे वो एक सोसाइटी रहती है ना, mentioned many times in the constitution, sir. Yes ma'am. Yeah. So protect scheduled caste and tribes from exploitation. तो ये भी आम है क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इनको काफ़ी डिसएडवांटेज ग्रुप है, काफ़ी इन लोगों के साथ गलत हो चुका है सलूक। तो पहले ही ये था कि इस तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन लोगों के साथ। एंड देन प्रोमोट एजुकेशन अमॉन्ग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे वीकर सेक्शन तो औरतें ही हो सकती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकर सेक्शन आप कुछ कहना चाह रहे? क्या वो मेहमान भी जा रहे? Please continue madam. Yeah. Okay, sir. So these are all the economic principle. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पैसे की, यहाँ पे इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। किस किस को? शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को, वीकर सेक्शंस को, बच्चों को, उनके जाहिर है बच्चों को आप एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे के, जो चाइल्ड केयर उनको चाहिए, जो बचपन में जो उनका ख्याल होना चाहिए, ये सारी चीज़ों से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फरजाना जी. Yes, sir. Yeah, saying something. Last point, madam. I want to add one more point here. Promote Sure, sir, education sure. amongst the weaker sections of society. हम जो weaker section बोलते क्या है जी? That they are not get properly on par with other people. So, for example, slum area, తండాలలో ఉన్న పిల్లలకు, అట్లనే గల్లీలో ఉన్న పిల్లలకు, సో అక్కడ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు సార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఎడ్యుకేషన్ అందించగలగాలి. ఎట్లా? బై NGOs, non-government organizations. So government will some fund to them for candidate wise. So in terms they will take the amount and they will expenditure on these students. For example, they will establish small RBC, residential bridge course, or NRBC, non-residential bridge course, or some madrasa. So when I am the academic monitoring officer in Rangareddy Jilla, so I given so many permissions to the madrasas. Why? Because the people, they cannot access to the schools. So in their area, in their slum area, they establish one room and they will provide the education in that place only. So that is also one type of promoting education. Similarly, out of the state or will come to here. Why? Because the livelihood. For example, if you take Karnataka, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, पूरा ज्यादा लोग सिटी में है जी. There are two types. One is for they are doing shops and restaurants. Another people are they are doing constructive workers. Most of the Bihari people are doing constructive workers. But in our state we have only Telugu medium student and English medium. But we have to provide some sort of education to them their mother tongue. So that's why
we are going to arrange some of the identifying the sites, and in that site who are there. So for according to the situation, according to the people, we are providing the education by using of NGOs. Thank you, madam. Sorry for interruption. Please continue. हमारा फरजाना जी, Sir. am I Yes. disturbing you? Sorry. Yes. Okay, please. Now we come to the social principles. See, when you search on internet, you'll find different ways of mentioning the DPSP. Somewhere you'll find social principles and economic principles together, then Gandhian principle as a different one. But don't get confused, it's just for writing sake. गांधी जी का कुछ अपना एक उसने उसूल थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उसको हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल बोल रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को मिला दिया है. नया तालीम के बारे में. नई तालीम, बेसिक एजुकेशन. सो दिस सोशल प्रिंसिपल में क्या आता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत. ये था कि हमारे पास विलेज पंचायत का सिस्टम होना चाहिए. आपको पता है कि इंडिया में ज्यादा विलेज ही है, गांव ज्यादा है. तो उसके लिए क्या है, एक पंचायत सिस्टम होना जरूरी है हर गांव में. तो डीपीएसपी में ये विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करने की बात भी बोली गई थी. देन प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज. ये कॉटेज इंडस्ट्री एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज डाला है कि जो रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ पे जो है जरूरी होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे हर चीज उगाई जाती है. सो ना ये आराम से जो है वहाँ पे ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैब्लिश किए जा सकते हैं. द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फिर वही बात हो रही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना है और वीकर सेक्शन को ऊपर लाना है. आप देख रहे हैं ना, सारे प्रिंसिपल जो हैं सोशल, इकोनॉमिक और गांधीयन प्रिंसिपल, ये सब ओवरलैपिंग है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं. यहाँ पे मैंने अलग करके जो डाला है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं. द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. आपको तो पता ही है कि कितनी बुरी चीज है ये अल्कोहल भी और ड्रग्स भी. ये क्या करता है, इंसान के दिमागी जो वी कॉल इट बैलेंस, जो है बैलेंस को खराब कर देता है और इंसान जो है अपने होशो हवास में नहीं रहता. जितने गलत काम है आप करवा सकते हैं उनको ऐसी हालत में. तो ये भी, इसको भी रोकना बहुत जरूरी है. एंड इट वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन द प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. तो जानवरों को जो है ज्यादा कम से कम जो है उनको जो क्या बोलते हैं, उनको काटना. कैटल स्लॉटर मतलब उनको काटना, जो भी हो, जो भी पर्पस से, मीट के पर्पस से या फिर जो भी हो, चमड़े के वजह से. क्योंकि मालूम है आपको कि लेदर की चीजें जो है, चमड़े की चीजें जानवरों के चमड़े से बनती है. तो जो भी रीजन हो, कैटल स्लॉटर को, जानवरों के मारने को, काटने को, उसको रोका जाना चाहिए. एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. अब ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स. जितने फार्म में हम एनिमल्स देखते हैं, आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं कि जो जैसे मुर्गियाँ हैं, वी फाइंड पिग्स, हॉर्सेस, काउ, गोट, शीप, ये सारे को रेयर किया जाता है, पाला जाता है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके अलग अलग कामों में. तो उसको बढ़ावा देने की बात हुई है. यहाँ पे देखिए लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी एक मुझे मिला, जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को बता दूं. यहाँ पे लिबरल यानी कि थोड़ी आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है, और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो ये मतलब यहाँ पे अक्लमंदी का भी ये मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पे कि आर्टिकल 44 में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन. सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म तो पता है आपको, स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम. तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म क्यों यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं? ताकि सब एक जैसे लगे. तो वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, सबके लिए एक ही तरह का सिस्टम होना चाहिए, एक ही चीज, एक ही अंदाज की चीजें सबको फॉलो करनी रहेंगी. तो ये आर्टिकल 44 में है. आर्टिकल 45 में क्या है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविजन 45 में मिलेगा आपको. देन आर्टिकल 48
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको, एग्रीकल्चर और जो एनिमल्स को पालना है ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको अलग जो भी उनके इस्तेमाल की चीज़ें उसको बेच के जो है उससे जो फार्म एनिमल्स को यूज़ करके लोग कमा सकें। तो आर्टिकल 48A में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया था कि आपको एनवायरनमेंट को भी बचाना है, जंगलों को भी बचाना है और जंगल में रहने वाले जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना है। Then आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमारे पास कुतुब मीनार है, नहीं पहले मैं हैदराबाद से शुरू करती हूँ। हमारे पास चार मीनार है, हमारे पास गोलकुंडा किला है, उसके बाद हमारे पास कुतुब मीनार है, हमारे पास जामा मस्जिद है, वी हैव ताजमहल, हमारे 7 वंडर्स में से एक है दुनिया के। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये हमारे नेशनल हेरिटेज हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 49 में इनके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। देन आर्टिकल 51 में क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी दूसरे मुल्कों से, देशों से, दूसरे कंट्रीज के साथ एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना है, उनके साथ शांति से रहना है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सो अंडर दिस कैटेगरी लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें प्रोविजन वाज मेड टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर क्या है, यहाँ पे जब आप कोई कानून बनता है तो कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। यहाँ पे सिर्फ कानून बनते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा उसका मतलब, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन पार्ट में आते हैं, यहाँ पे जो लॉज बने थे, जो कानून बने थे, उनको कैसे इम्प्लीकेशन होना चाहिए, कैसे उसको लागू करना है, या उसके बारे में एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो उसको, या सो नेक्स्ट इज जुडिशियल। या जुडिशियल जो है पूरा का पूरा कोर्ट है, यानी ना ये लेजिस्लेटिव है ना एग्जीक्यूटिव है। जब एक लेजिस्लेटिव में एक लॉ बन रहा है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है, और जब इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की उसमें गलत चीज़ होती है, तो हम जुडिशियरी के पास जाते हैं, हम अपने कोर्ट में जाते हैं और फिर वहाँ से हम फैसला हमको मिलता है। तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। तो कोर्ट के बारे में तो हम अभी और ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन ये तीनों अलग हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, DPSP में इसका ख्याल रखा गया कि तीनों चीज़ें अलग अलग हों, तीनों मिले नहीं आपस में, बल्कि अलग अलग रहें। देन प्रोविजंस फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी मैंने आपको बता दिया। एंड स्कीम्स वर आल्सो प्रोवाइडेड टू ऑफर फ्री लीगल एड टू पीपल। लीगल एड यहाँ पे आपको, कि अगर किसी तरह की परेशानी, आप कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको फैसला में सुनवाई करनी है, तो ये फ्री होना चाहिए, फ्री लीगल एड टू पीपल, क्योंकि हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि जाके कोर्ट के फैसले के लिए उसको खर्च कर सके। तो फ्री लीगल एड मिलने का भी प्रोविजन था। देन प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, यहाँ पे इट मेक्स प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हेरिटेज साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और उनको खराब भी नहीं करना है, मतलब ना सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उनको जैसा वो शुरू में बना हुआ था, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो उसी रूप में रहे, उसी अंदाज में रहे, उनमें उनको कुछ खराब नहीं करना है, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं है। So they are not defaced. The state has been vested with the responsibility to protect the forest and wildlife of the country. यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में गाइडलाइंस दी गई हैं नेशनल DPSP में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं कि international peace and security is to be promoted by the nation by means of maintaining good and just relations with other nations. तो हम लोगों को
साफ सुथरी एक अच्छी सी मिलजुल कर रहने वाली एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है दूसरे कंट्रीज के साथ, और सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना है बल्कि वी हैव टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। जो दुनिया में और भी है ना लॉज हैं बहुत सारे जो Madam, if you आपस don't में। mind, your video is unmute, madam, I think. ओके या सर, या 1 minute सर। Your video is video. Just only share screen. Okay. Yeah, now it's fine. sorry No, please. So, now next is promoting peace and settling international disputes through mediation and negotiation. तो आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी में सारी चीजों का मतलब आप एक छोटी विलेज पंचायत से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के अगर किसी तरह की डिस्प्यूट्स हैं, कोई झगड़ा है, ठीक है ना, दूसरे देशों के बीच में, अभी जैसे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी लेकिन जैसे अभी चाइना और इंडिया का चल रहा है, कुछ इश्यू चल रहा है, तो बहुत हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई नहीं हो, हम उसको किसी तरह से सेटल कर दे डिस्प्यूट को। तो उसके लिए निगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होने के बाद जो है इस तरह की परेशानियों से दूर जाया जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब ये देखना है कि जो ये डीपीएसपी बना था, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ है। तो बेस्ड ऑन डीपीएसपी द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देयर आर सम ऑफ द वेज इन विच दे हैव इम्प्लीमेंटेड दीज प्रिंसिपल्स। अब आप यहाँ पे देखिए आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो देना है, ये एक्ट जब बना था तो ये इम्प्लीमेंटेशन है डीपीएसपी का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने एक एक्ट बनाया, आरटीई एक्ट 2009, और इस एक्ट के मुताबिक हर बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. इम्प्लीमेंट हो गया ना, इम्प्लीमेंट हो गया, ये हुआ, ये हो सका। फिर जैसे हैंडलूम बोर्ड्स हैं, सिल्क बोर्ड्स हैं, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स हैं, दीज आर सेटअप, ये हर जगह सेट बोर्ड्स तैयार बने हैं, ठीक है, जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। मतलब ये छोटी छोटी जो बिजनेस लोग करते हैं ना, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे बोर्ड्स तैयार हुए हैं और इंडिया में कई जगहों पे आपको ये बोर्ड वो है, जैसे इंटरमीडिएट बोर्ड्स है ना, वैसे सिल्क बोर्ड्स भी हैं, हैंडलूम बोर्ड्स भी हैं जो सेटअप हुए हैं ताकि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। फिर रिजर्वेशंस हैव बीन मेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर आपने किसी प्रोग्राम में आपने रजिस्टर किया हो, किसी तरह का एडमिशन लेने के लिए आप गए हों, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो आपने, तो आपने देखा होगा कि शेड्यूल। वालेकुम अस्सलाम मैम, एक्सक्यूज मी मैम। श्योर। मैम मेरा एक डाउट था, ये रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो ठीक है मैम, लेकिन ट्राइब्स जो होते हैं मतलब दे आर गोंडास ना, दे लिव इन सो their language is totally different from language, so they won't educate, तो उन लोग इस चीज में रिजर्वेशन दिया जाता है मैम? उनको ऐसा नहीं, ओके ठीक है, ये डाउट हम थोड़ा 2-3 स्लाइड्स और हैं उसको कवर करके फिर विल, या यस सर। Shall I interfere? Sure. Ujma, Amma. Ujma. Yes sir. The Constitution of India Yes sir. is same for all the people, irrespective of caste, religion, creed, everything, Amma. Na Thanda, na Basti, na village, na city, na irrespective of all these, our constitution provides some reservations for all the people equally. For example, for SC people,
In reservation means some sort of plans. For example, if you want employment, normal people 28 years. So government is giving those people next 10 years extra. For example, fees भरने के लिए नॉर्मल पीपल 200 रुपीज रहते, वो लोगों को फी रहते, क्यों? तो ऐसा दिए तो लोगों बैकवर्ड से आगे बढ़ते बोल के ऐसा 5 साल 10 साल ऐसा तक दिया जाए एनकरेजमेंट के लिए। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मेरा डाउट क्या है कि सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे भी मालूम है, मतलब हम लोग को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फी देना होता है। जी, आपका आवाज सही ना आ रहा है अम्मा। सीएम ना थंडर ना सिटी, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया अम्मा, ना तो रूरल। लोग को थोड़ी कम फी होती है, लेकिन ये जो ट्राइब, अगर वो एजुकेशन में लोगों उज्मा आपका आवाज एक बार चेक करो अम्मा, सही नहीं है इंटरनेट। ओके, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। प्लीज मैडम यू कंटिन्यू मैम। या प्लीज यू कैन अम्मा। फरजाना जी। Yeah, sir. Yeah, we'll discuss. Definitely we'll come back to this point. तो ये रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स की. We'll discuss it later. And then again, this जमींदारी system has been abolished. आपको सबको पता है कि जमींदारी सिस्टम क्या है, तो ये तो पूरी तरह से समझिए खत्म ही हो गया. उसके अलावा जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी ये, and such other schemes have been implemented to provide employment opportunities to all. अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जवाहर रोजगार योजना तो आई, बहुत सारे हर लोगों को जॉब भी मिली, लेकिन अभी क्या है, अभी भी लोग बेरोजगार हैं. तो देखिए लोग, ये इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जितना भी रोजगार दे दो, कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी रहेगी. और ये एक हमेशा का एक प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरह सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल ही है. अगेन विल कम बैक टू दिस. जवाहर रोजगार योजना 1989 में ये आई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में ये एक्ट पास हुआ था टू प्रोवाइड इक्वालिटी इन वेजेस. तो लोगों को जो है, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, हर किस्म के लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हैं. A minimum time rate of wages, then minimum piece rate, guaranteed time rate. This is all about features of the act है ये, कि minimum wages may consist of basic rate of wages. एक कुछ minimum जो है ना सबके लिए फिक्स हो, उतना तो मिलना ही है. उसके अलावा फिर कुछ चीजें जो है डिपेंडिंग ऑन द कहाँ पे आप रह रहे, किस तरह की जॉब कर रहे, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 was passed to protect the interest of children. It was an act to prohibit the engagement of children in certain employments. छोटे बच्चों को हर किस्म के जॉब में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है. एक पहली बात तो हमको 14 साल तक के बच्चों को जॉब में लगाना ही नहीं है. उसके बाद भी अगर जॉब में लगते हैं तो कुछ चीजें उनके लिए नहीं है, वो नहीं कर सकते. पहली बात तो कि उनको वो प्रोहिबिट करना है, उनको उस तरह के जॉब, बच्चों को जॉब में जाना ही नहीं है, कामों पे जाना नहीं है. दूसरा, अगर चले भी गए तो किस तरह के कामों में उसको रेगुलेट करना है, टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन अदर एम्प्लॉयमेंट. द इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP, it direct the government, give the direction to the government to act in a prescribed manner. प्रिस्क्रिप्शन पता है ना आपको, डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है कि गवर्नमेंट को इसी तरह से चलना है, और वो DPSP में है. They act as a guidebook and a code of conduct for the government. They help the government to achieve the ideals prescribed in the Constitution. They also help the citizens to know about the duties of the government and what to expect from the government they elect. आपको पता ही है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम खुद ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को. तो जब हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो हमारी कुछ उनसे उम्मीदें रहती हैं. We expect something from them. तो उनके भी कुछ ड्यूटीज हैं जो उनको निभाना है. So these all things are there in DPSP. ये पूरे जो है हमको गाइडलाइंस मिले हुए हैं. There is a difference in, बहुत सारे लोग फंडामेंटल राइट और DPSP में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक छोटा सा स्लाइड इसके लिए बना लिया था कि DPSP जो है आपको एम्पावरमेंट करता है गवर्नमेंट को,
यानी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करने का मौका देता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि दोज आर फिक्स्ड, उनको उनको वो करना है, उनको यूज करना है उसको, सॉरी फंडामेंटल राइट्स को आपको किसी भी तरह से लोगों को प्रोवाइड करना है। देन कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट्स। जो डीपीएसपी हैं कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते, कोर्ट में आप नहीं जा सकते अगर आपको नहीं मिल रहा तो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। देन इट प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल। आपने देखा होगा डीपीएसपी में हम जनरल सिटीजन की बात कर रहे हैं, सबके बारे में कि सबको मिलना चाहिए, सबका वेलफेयर हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, किसको कौन से राइट्स देना है नहीं देना। Then laws and policies have to be made based on these principles. तो ये जीपीएसपी क्या करता, हमको हेल्प करता, हमको गाइड करता कि हम लॉज और पॉलिसीज बनाएं। और ये फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड इट कैनॉट बी सस्पेंडेड एंड हैव टू कंटिन्यू बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे पॉलिसीज बनती रहेंगी, लॉज बनते रहेंगे, चलती रहेगी, सोसाइटी में हर चीज आती रहेगी जाती रहेगी। बट हियर इन फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी आती है तो क्या होता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कुछ चीजें जैसे लॉकडाउन में था तो हम जा सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन जब हम ये पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ, हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया हमारा, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। सो आई एम स्टॉप शेयरिंग। Okay, ma'am. Okay. Yeah, we can continue with some questions. Yeah. ट्रेनिंग्स जो अभी तक मैडम ने बात करें ना सेशन के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, हमारा स्टेट लेवल प्रिंसिपल्स क्या है, और एजुकेशन के बारे में कहीं से रिलेट होते बोल के अभी तक अच्छा तरह से स्लाइड से प्रेजेंट करे। आप लोग कुछ डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क देम। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज यू कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड मैम, या प्लीज। मैम ये सिविल कोड के बारे में फिर से बोलिए ना मैम। सिविल कोड ये है, सिविल यानी कि आप ये जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो जब हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी हमको क्या चीज कैसे करनी है। तो गवर्नमेंट ने हमको कुछ प्रोवाइड किया है ना, कुछ चीजें कैसे रहना है, आपको सुबह से शाम तक कैसे रहना है। जैसे घर का एक रूल होता है ना, हर स्कूल का। चलिए हम स्कूल का बेस्ट हमारे लिए स्कूल का एग्जाम्पल। स्कूल में आप देखते हैं ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको फिर मॉर्निंग असेंबली में जाना है, फिर उनको क्लास में जाना है, लंच के टाइम में लंच करना है, गेम्स के टाइम में गेम्स खेलना है, छुट्टी के टाइम में फिर लाइन बना के उनको जो है वापस अपने अपने बसों में चढ़ना है, या फिर जो भी अपने अपने घरों में जैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं तो पैदल पेरेंट्स आते हैं। तो उसी तरह यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सॉरी सिविल कोड जो है, ये सारी आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए एक जैसी है। ओके मैम। जी, किसी एक से दूसरों में ये बदलती नहीं है, सबके लिए एक बराबर रहती है। यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस अम्मा नाज़नीन। ओके सर। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बेहतरीन जीवन लेने के लिए, बस इतना ही। ओके मैम, थैंक यू। सोसाइटी फॉर एग्जांपल लाइन में करना और रोड पर लेफ्ट साइड पर रहना, वॉक करना, या all those things comes under these rules. Yeah. Yes, इसरा तरह अंजुम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब आज की क्लास तो माशाल्लाह थी, लेकिन एक छोटा सा डाउट था। आप नो सर। ओके। आप बोले ना मीट पर्पस के लिए हम लोग जानवरों को खाते ना मैम, तो कैसा तहफ्फुज़ करना उसको खाने ऐसा के नहीं है। लिए? देखिए अब देखिए जैसे ये वही कर रहे ना, एनिमल हस्बेंड्री जो हो रहा है वो उसी मकसद से है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा रेयर करना, आप ज्यादा से ज्यादा पालना आप जानवरों को। ठीक है ना, जैसे पेड़ का है ना, अगर पेड़ काटते हैं तो क्या है, एक पेड़ लगा दो। तो वैसे ही जब आप एनिमल्स को जो है चमड़ों के लिए, उनको खाने के लिए, और भी कई वजह से उनको। हाँ मैम, ज़राअत के लिए भी मैम। गलत नहीं है अम्मा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। या ठीक है, देखिए यस नाउ ओके फाइन।
यस और कुछ? एमडी आरिफ, या बोलो भाई। मैम, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही आवाज? हाँ मैम आ रही। मैम ये हैंडलूम बोर्ड्स और सिल्क बोर्ड्स के बारे में बोलिए, जैसे कि इंटरमीडिएट का बोर्ड रहता है बोले ना, ये किस तरीके से होता है जरा समझाइए। जी मैम। आपने सीबीएसई के बारे में सुना है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। जी जी मैम सुना मैम, सेंट्रल बोर्ड है ना, क्या करती है ये बोर्ड? अच्छा, इंटरमीडिएट बोर्ड क्या करती है? कोई भी बोलिए। तालीम फराहम करना मैम। टेक्स्ट बुक्स फराहम करती है मैम, एग्जाम कंडक्ट करती है। तालीम फराहम करना बच्चों को हायर एजुकेशन के सिल्क बोर्ड क्या करेगी? लिए। इसी तरह कुछ और है, सिल्क थ्रेड्स पता है बनाना। ना, जी जी, सिल्क के जो कपड़े बनते हैं, हाँ, के जो कपड़े बनते हैं, सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता, पाला उलन जाता के है। वास्ते, उलन के वर्कर के वास्ते कुछ स्पेशल कुछ नीड्स जी दिए जी होंगे जी, शायद। हाँ, उस तरह की जो भी चीजों को अवेलेबल करना है, जो भी उसकी डिमांड रहती है उस काम की, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजों को अवेलेबल कराती है ये बोर्ड। जो भी चीज है, ठीक है, आप यहाँ पे हैंडलूम की बात कर रहे हैं, आप सिल्क की बात कर रहे हैं, सारी चीजों के लिए, समझ रहे ना, सारे चीजों का इंतजाम करना, कहाँ पे उसकी जरूरत है, कहाँ से अवेलेबल होगा, उसकी मार्केटिंग कहाँ पे होगी, बनेगा तो बेचा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। पहले तो जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कहाँ से आएगा, कच्चा माल आने के बाद फिर उसको कैसे इस्तेमाल करके चीजें बनेंगी, कपड़े बनेंगे, ठीक है, जो भी सिल्क की चीजें बनती हैं, उसके बनने के बाद वो कहाँ जाएंगी, कैसे उनको बेचा जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजों को ये बोर्ड्स ये तय करती है। या और आरिफ आरिफ ओ तगुरा एक्सप्रेस अल्लू अल्लू ऐसा ऐसा तगुरा बोला हम। गुड इवनिंग सर। जी बोलो। आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल है ना, इसमें डिफरेंस? आपका ऑडियो अच्छा नहीं, एक बार चेक करो और एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। I got a question, sir. I got a question. हाँ, पार्ट हाँ, एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और बाद में 3 पार्ट ऐड किए गए, टोटल 25 पार्ट्स हैं, जिसमें मिला के 448 आर्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ना वो ये पार्ट्स में ऐड नहीं की गई, जो डिटेल है उसका, तो ये सारे डिटेल्स जो है ना 8 अलग से 12 शेड्यूल है, ये 12 शेड्यूल्स में डाले गए हैं, उसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो उन चीजों की। मैम हम वो नहीं पूछ रहे, आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल में डिफरेंसेस क्या है पूछ रहे खाली। अच्छा, तो पार्ट तो समझ गए आप, मैं आपको बताती हूँ, देखिए, जैसे ये एक हेडिंग लेते आप, फिर सब हेडिंग डालते, फिर उसके अंदर पॉइंट्स रहते, ठीक है। हेडिंग जो हो गए आपके पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट में 25 पार्ट है, बट हेडिंग है, मैं आपको हेडिंग्स के नाम भी बोलती हूँ। जैसे देखिए, पार्ट 1 जो है ना वो यूनियन टेरिटरीज, सॉरी, जो हमारा यूनियन पूरी कंट्री है उसके अंदर उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो एरिया है, उसके बारे में बात है। फिर जब दूसरा जो पार्ट 2 है, ठीक है, मैं आपको पार्ट 3, जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में है, पार्ट 4A जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, पार्ट 5 में पूरे यूनियन के बारे में, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। तो वैसे ये जो सारे पार्ट्स हैं ये पूरे चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो जैसे 4th पार्ट है डीपीएसपी, इसमें सिर्फ बताया गया है कि क्या क्या रहेगा, मेन आइटम क्या क्या है, तो ये आर्टिकल्स हो गए। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल शेड्यूल में डाली गई है। शेड्यूल अलग से ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको पार्ट्स में आर्टिकल्स हैं, और जब पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, पूरे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो एंड में शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं।
उसमें और डिटेल में है, उसी चीज को डिटेल में दिया गया है। आप एक बार क्या कीजिए, आप ऑनलाइन ना आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए और एंड में जाइए तो आपको शेड्यूल नजर आएगा, और एक बार देखकर आप फिर बताइए कि उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। Madam, we have our principal in the session, madam. Sir, thank you, sir. Good evening, sir. Welcome joining with our session. Yeah, good evening, Charigar. Good evening. Very nice. I am just watching the program. Good. Yeah, it's a good thing. Actually, Anna, Yeah. herself called me yesterday. Oh, very nice. I want to go take one class. Yeah. Please Just you stop the recording when you are talking. Yeah, okay. Yeah, just pause and every student at least should know the directive principles of state policy. Yes, sir. Thank you, madam. Very nice. Students got clear idea about the directive principles of state policy, which is the mandatory in the constitution. It is the obligation for the government to provide. It is a part of the welfare government. It is a fundamental rights. So you have a fundamental rights and directive principles. Students, what is the difference between fundamental rights and directive principles? Anybody? Have you got the idea? What is the differences between the fundamental rights and directive state principles of the state policy? DSPS? DSS, direct principles of state policy. DPSP. Anybody? मैडम अभी तक बोले ना? सर मैडम एक डिफरेंस बताए सर। हम राइट्स के लिए सर ये हम लोगों को अगर कुछ हमारे राइट्स में कुछ राइट्स के खिलाफ हमारे साथ हो रहा तो हम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ लड़ सकते। किसके बारे में? ये हमारे राइट्स को लेकर सर। यस सर। ओके। लेकिन ये जो मैडम बोले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर हम हमारे साथ अगर कुछ हम गलत भी करते हैं तो वो कोर्ट में जाकर हम नहीं कर सकते। But why then why? Let me know why. Then when you are unable to get anything from the court में जाकर कुछ नहीं लेने के लिए क्या फायदा है फिर? Directive principles of state policy. नहीं है सर, नहीं है सर। हाँ? फायदा नहीं? थोड़ी बहुत जगह है सर। कैसा? So what are the items are included in the directive principles of the state policy? What are the articles are included in this? In directive principles cannot be suspended and have to continue. No, I am asking about, so what are the details of the number of articles are included in this? There are some articles in a constitution part 4th. What are they? 36 to 51 sir. 36 to 51, very good. Can anybody say where we have taken this directive principles of state policy? I think you are aware of, we have taken from different constitutions from the world. Ireland, sir. Ireland, sir. Ireland, sir. One by one, please. One by one. The Ireland principle. Very good. This is from the Ireland constitution. We borrowed some of the ideas from the Ireland. This is how, this is how we have borrowed from different countries. Very good. Though it is not implemented through the court, but what is the word that they have included to give the direction to the state? There is one word mentioned in the directive state principles of the state policy. Can anybody? DPSP, sir. DPSP, though it will not be protected through the court, but in spite of that, there is an obligation for the state to implement the articles mentioned in the directive principle of the state policy. For that purpose, Dr. Ambedkar has presented during the draft constitution. He explained the purpose behind the directive principles. What is the purpose? How they are going to fulfill the purpose? किसके बारे में ये यूज होता? Training?
Anybody? सर ये स्टेट के लिए और स्टेट की पब्लिक के लिए होता होगा सर. So it is an obligation of the state. See, for example, हम घर में है ना, घर में there is no rule to feed the child, to send the child to school, to give good shelter, education, and love and affection. There is no rule. Yes sir. But in spite of that, parents क्या करते हैं? सब देते ना? देते नहीं देते? हाँ देते हैं. हाँ क्यों सब देते? देते. क्यों देते? It is an obligation. Being a parents, they have to provide all these facilities for the children, their well-being. So similarly, direct to state principles, the policies also, it is the obligation of the state, even though they were not be protected through the court. Okay sir. But it is an obligation. The state strive to be, there is a one word has used by Ambedkar during the constitution discussion. The state should strive promote welfare of the people. This is the important underlining sentence we have to remember. The state strive to be promote welfare. Strive means here it is an obligation. Promote the welfare of all child, sir. Promote Yeah, the welfare of all the people, whether it may be children, either it may be women, or it may be old age, or it may be some industries, village industries. These are the obligation of the state to promote. This is a strive to be promote. There is a word, strive to be promote. This is the important part in this directive principle of the state policy. Yes, sir. The state should strive to be. And also, I want all of you should know what are the articles one by one. 36 क्या है, 37, 38, 39. You see? Education का article कौन है? 21 है sir. फंडामेंटल राइट्स में इधर है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसी में. Okay. 2009 sir, RT 2009. No, I am asking about which article of the directive principle of the state policy mentioned related to education, children education. 46 sir, promotion of education and economic interest. 45 sir, 45. 45 क्या है 45 में? Provision for early child care and education to children below the age of 6 years. Yeah, for the age of 6 years. See, this is Yes, article sir. 45. ये 45 में अभी right to education act लाया है यहाँ से. Earlier it is only fundamental, only it is related to only directive principle of the state policy, but amendment of the act, now it is became a fundamental right, education, right to education act. Yes, sir. So this is amendment होता है कभी future में क्या होता, फिर fundamental directive principle state policy, some of the directive principle state policy can be converted into legal rights. So थोड़ा कुछ amendment होने से ऐसा होता. Our constitution is very flexible. That means if the people wish, they can make changes. This is not a rigid one. As you all of you know, our constitution is a flexible one. Means it can be amended when and where they want. Of directive principles after amendment, sir. क्या? तब्दीली ला सकते sir, changes. Provision? New provisions are added in directive principles, sir, after amendment. Yeah, after amendment. See, no, what I am telling is every article there is a provision to amend. So our constitution, those articles है ना, total articles. So articles, if in future, what Ambedkar has said, this is not a rigid one. This is not a fixed one. Whenever we want, you can amend the articles according. क्या? और उसको अमेंड कर सकते हैं. जहाँ भी जरूरत है उसको बना सकते हैं. हाँ, अमेंड कर सकते हैं. उसमें कुछ भी तब्दीली ला सकते हो वैसा. या अमेंड कर सकते हैं. वो इम्पोर्टेंट है ना. जैसे पीपल्स को फायदा हो. welfare of the people, the need and interest of the people, the need of the hour, the need of the country, the need of the
society, they can change the nature and the aspect of the articles also. Very good. So I think you got a clear idea today. Yes. Yes, We sir. have to thank Yes, sir. Rahana It's madam clear. for her detailed interaction. This is more important. The constitution is one of the a guiding principle for everybody, and every citizen of this country should know about the fundamental rights, and they should know their duties and responsibilities. So then only we can discharge our duties effectively. Very good. Thank you, ma. Thank you. Anything? If you want to ask anything further? Yes, sir. Yes, sir. I have Yes. one doubt, sir. Yes, please. Ma'am, बोलिए ना. sir, Article 50 separation of judiciary from executive में क्या है बोल के पूछना था. Separate from? Separation of judiciary from executive. Separation of judiciary from executive. Execution. Executive. Yes, sir. Yeah, please. Chapan, Article 51. No, madam is ready to. Yeah, ma'am. Yeah. Legislature जो है ये it promotes for the यहाँ पे क्या है पूरे लॉज बनते हैं. जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉज बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करना रहता है. जैसे आरटीई के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट. ये एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन इस एक्ट को कौन एग्जीक्यूट करेंगे? जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है हर स्टेट के, वो एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन अगर इस एजुकेशन एक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई इसको वायलेट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, तब लोग जुडिशरी के पास जाते हैं. तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? लॉज को, एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड जब कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ परेशानी होती है, जब हम जुडिशरी में जाते हैं. जुडिशरी कोर्ट है, समझ रहे ना आप? जी मैम. जुडिशरी जो है, हम यहाँ पे कोर्ट की बात कर रहे हैं जी. और जो एग्जीक्यूटिव होता है ये इम्प्लीमेंटेशन होता है. मतलब ये कि हम गवर्नमेंट इसको वो करती है ना, इम्प्लीमेंट करती है. जब एक एक्ट बनता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे देश में लागू करती है. हर जगह इसको, हर स्कूल, जैसे राइट टू एजुकेशन है तो हर स्टेट में जा रहा है. हर स्कूल में लोग जो है ना बच्चों को ले रहे हैं. 25% बच्चों को रिजर्वेशन भी है कि पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को हम ले सकते हैं, डिसेबल बच्चों को ले सकते हैं हम. ठीक है ना? तो ये सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं. लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम, मान लो एक बच्चा आता है जो एडमिशन लेना चाह रहा है और उसको नहीं मिल रहा है एडमिशन, स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे वो? अब वो कोर्ट में जाएंगे. तो कोर्ट ये जुडिशियरी हो गया. ओके मैम, थैंक यू सो मच. डीपीएसपी क्या कर रही है? दोनों को अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है. I think it is a 50 article, not 51. It is a 50. Yes sir, 50. Yeah, separation of judiciary from executive. पहले आपको judiciary क्या है, executive क्या है मालूम है? Judiciary, the difference is the administration में legislature, judiciary and executive, 3 main bodies हैं. Government है तो क्या है? Government है तो एक बार judiciary है, दूसरा executive body है, तीसरा legislative body. Legislative क्या करते हैं? They prepare the laws. Law बनाते sir. Who will implement the laws? Executive. Implement. कुछ प्रॉब्लम होते इम्प्लीमेंटेशन में, लोग किधर जाते? Judiciary. कोर्ट. Yes, sir. For effective governance in India, भारत में कुछ effective governance के बारे में these are 3 bodies are important bodies: legislative, judiciary and executive. So here what they did is separate of judiciary from executive. Executive कौन-कौन होता है मालूम है आपका? Give me one example of executive body. All state officers. Yes. All officers. Officers. Yeah, appointed by the government, state government and the central government.
They are the employees of the state, but they are the power to implement whatever the legislatures made. So इसी में कुछ problem होते हैं, then they will go to the court and the executives are responsible for the implementation. Sometimes even they given the punishment also. The court of law. So court is the highest body of Indian Constitution. Judiciary, Yes, the judiciary has the highest power. Yes, sir. But judiciary also, by the again, it is governing by the again, it's a parliament again. President, under the president. President is the head of the all the state. ऐसा थोड़ा मालूम होना आप लोगों को, okay? सर इसको Okay, thank you, हुकूमत sir. के अज्जा भी बोलते हैं सर, मुखन्नना आमिला अदलिया. Okay. So as a teacher, you must know at least these things. Okay, and also this is articles also 36 से 51 each article का क्या है, उसमें क्या है आपका मालूम होना. You can search in the net or in the, if you want, you can also find from the Wikipedia. You can get the details of each and every one. Okay. You can gather some more information from this. Yes. In addition to whatever ma'am has discussed today, then you can also get some more information and keep with you, not only for the examination, but being a good citizen, being a teacher, you must know. Thank you. Right. Okay, madam. Thank you very much for being with us, madam. Really, it's a wonderful session. Our trainees also, the reflections of our trainees are very good. Just now our sir said, this is only due to you, madam. Really, you're good and enlightened. You enlighten us. Thank you very much for being with us, madam. Thank you once again on behalf of our diet Vikarabad. So thank you very much, madam. Now I'm closing the session, madam. So thank you, ma'am. Yeah, everybody. Allah Hafiz. Thank you, everybody. Allah Hafiz. Have a nice day. Thank you. Ma'am, we want more classes from you, ma'am. Inshallah, next week. Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you once again.